Hi दोस्तों, welcome to my channel. This is Agle Sampath. We will learn today history. How many part history is divided and what is included in this. We will learn each and every aspect of history. Let's start. First part is history is divided into three parts. That is, first one is prehistoric period. Second one is protohistoric period. And third one is historic period. Yes or no? What is history is divided? How many parts? Three parts. That is prehistoric period, protohistoric period, and historic period. What is including prehistoric period? Pre means primitive. Pre means primitive. That is primal stage. That's why no written records available in this period. What mean? No written records. No written records available in this period due to primal stage. And हम स्टडी कैसे करने वाले फिर उसमें तो कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं। स्टडी का हम जो देख रहे हैं किसके बेस के ऊपर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किसके बेस के ऊपर देख रहे हैं, हम आर्कियोलॉजिकल बेस के ऊपर देख रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, वी फाउंड सम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। Yes or no? We found some archaeological evidences. That's our studies based on these archaeological evidences. This period also consists Stone Age, and Stone is divided into three parts. That is Paleolithic period, second one is Mesolithic period, and third one is Neolithic period. And second topic is second type of history is, that is protohistoric period. In protohistoric period, what does it include? Civilization part. That is also called as Indus civilization or Harappa civilization. Contemporary of this civilization, Mesopotamia civilization in Western world. As well as in historic period, what is included? In historic period, ancient history, medieval history, and modern history. Yes or no? What we seen today? Let's revise in quick 1 minute. Prehistoric period, protohistoric period, and historic period. That is history is divided into three parts. Okay. Then in prehistoric period, what we learn? No written records available because of this is primary stage. And what is no written records available? Yes or no? But हम स्टडी करने वाले किसके ऊपर करने वाले हैं? फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कुछ मिले हैं, उसके ऊपर हम उसके बेस का आधार लेके उसका सपोर्ट लेके हम स्टडी करने वाले हैं, स्टडी कर रहे हैं उस। और जो प्रीहिस्टोरिक पीरियड है वो किस उसमें क्या कंसिस्ट है? अभी स्टोन एज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. दैट इज first one is Mesolithic period, Paleolithic period, second one is Mesolithic period, and third one is Neolithic period. Is it clear to prehistoric period? Then second one is protohistoric period, that is civilization consists also what is Indus Valley civilization. And historic period, what is included in historic period? That is ancient history. That's
हाय। चलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप? मजे में? ठीक है, चलो देखने पढ़ने वाले हम आज क्या पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे? पैरोलिथिक पीरियड। पैरोलिथिक किसका पार्ट है? स्टोन एज का। स्टोन एज कितने पार्ट में डिवाइड है हमने देखा है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। कितने? फर्स्ट वन इज पैरोलिथिक पीरियड, सेकंड वन इज मेसोलिथिक पीरियड एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक पीरियड। हम क्या देखने वाले उसका कौन सा पार्ट देखने वाले? पैरोलिथिक पीरियड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ओल्ड स्टोन एज। यस और नो? These sites are generally located near water surface. First point is, what is our first point? That is, these sites are generally located near water surface. आपके जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, कोई भी आदमी कोई भी स्टेट डेवलप होने लगती है तब उसकी क्या चाहिए? पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए, मतलब झोपड़ी चाहिए, कुछ भी बिल्डिंग चाहिए। इसलिए इस पीरियड में भी लोग, इस पीरियड के लोग भी क्या करेंगे? खाने के लिए कुछ ढूंढेंगे, पीने के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए दिस साइट्स आर जनरली लोकेटेड नियर वाटर सरफेस। उसको पीने के लिए पानी चाहिए था उस लोगों को, इसलिए क्या प्रेफर करते थे कि वाटर के नजदीक ही रहने लगे। क्लियर? सेकंड क्या है? जो रहने के लिए वो जमाने में कोई बिल्डिंग वगैरह हमारे जैसे बेड वगैरह कुछ भी नहीं था, ब्रेक जैसा। इसलिए जो भी नेचर में उसका उपयोग करके, उसका यूज करके वो भी क्या बनाते थे? रहने के लिए कुछ जगह बनाते थे, कुछ झोपड़ियां बनाते थे और कुछ लोग केव्स में भी रहते थे, जो पत्थर इकट्ठा करके लोग रहने का इंतजाम करते थे, उसको केव कहते हैं हम। ऐसा होना। सेकंड पॉइंट इज क्लियर एंड थर्ड वन इज खाने के लिए। खाने का इंतजाम तो कुछ क्रॉपिंग सिस्टम वगैरह प्रीमियर स्टेज में नहीं होता है दोस्तों, जब धीरे धीरे डेवलप होता है तब ये सिस्टम आता है। लेकिन प्रीमियर स्टेज में क्या होता है? वो खाने, उसको तो जीना है दोस्तों, कैसे जिएंगे? तो उसके जो एनिमल, उस पीरियड में जो भी एनिमल प्रेजेंट है, स्थित है, उसका हंटिंग करके, उसका शिकार करके, और जो नेचर में जो भी कुछ फ्रूट से वो एडिबल प्लांट्स होगी, कुछ जैसे मैंगो वगैरह खाते हैं आज भी, उसके जैसे प्लांट्स, उसका कलेक्शन करके वो अपना अपना गुजर बसर करते थे। इसीलिए मेन बात यह है कि हंटिंग करते थे। इसलिए क्या कहा जाता है उस लोगों को, इस पीरियड के लोगों को क्या कहा जाता है? हंटर गैदरर्स। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। हंटर गैदरर्स क्या कहा जाता है? कौन से पीरियड के लोगों को? पैरोलिथिक पीरियड के लोगों को। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है दोस्तों, साइट, which sites of पैरोलिथिक पीरियड, दैट इज इंपॉर्टेंट इन एनी एग्जाम, आल्सो यूपीएससी, in any PSC. Let's let's see site of the Paramount Square. That is, first site is Son Valley and Potwar Plateau on the northwest India. क्या कहा मैंने? Son Valley and Potwar Plateau on northwest India. And second part is Shivalik Hills on North India. क्या कहा? Shivalik Hills on North India, कि जो कश्मीर के ऊपर स्थित है। थर्ड पॉइंट इज क्या है? भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। क्या है? भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। एंड फोर्थ वाला क्या है? आदमगढ़ हिल इन नर्मदा वैली। क्या है? आदमगढ़ हिल इन नर्मदा वैली। चौथा वाला पार्ट है कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश, जो सदन में स्थित है, कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश। आणि लास्ट वाला पॉइंट है अतिरामपक्कम नियर चेन्नई। अतिरामपक्कम नियर चेन्नई। दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर पैरोलिथिक पीरियड। दोस्तों हम देख रहे हैं स्टोन एज में पहला पार्ट देखा है हमने पैरोलिथिक पीरियड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रीमोडियल स्टेज। एंड सेकंड देख रहे हैं हम अभी मेसोलिथिक पीरियड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मिडल स्टोन एज। इन मिडल स्टोन एज व्हाट इज इंक्लूडेड एंड as well as other information we will see in, let's start mesolithic period, that is also called as mesolithic period, means middle stone age, that is mesolithic period. This period is also called as transitional phase because of this period lies between two periods, that is paleolithic period and neolithic period, that is also called as transitional phase. And second point is tiny stone artifacts. क्या बोल रहा है वो? tiny stone artifacts used not more than 5 centimeter in size. जो भी हथियार यूज कर रहे थे, जो पत्थर के बने हुए थे, वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं था। कौन से पीरियड में? मेसोलिथिक पीरियड में। इसीलिए उसको, इस पीरियड को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। इसलिए माइक्रो में स्मॉल, क्या कहा मैंने? माइक्रो में स्मॉल, एंड लिथ में स्टोन, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोलिथिक स्टोन एज। सेकंड क्या हुआ? पिछले पैलोलिथिक पीरियड में लोग बड़े बड़े एनिमल की हत्या
हंटिंग कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। लेकिन इस पीरियड में क्या हुआ, लोग क्या छोटे छोटे एनिमल के म्हणजे स्मॉल एनिमल की हत्या करने लगे और एज वेल एज फिशिंग भी करने लगे। ये एडिशनल पॉइंट है दोस्तों। और इस पीरियड में अच्छी बात ये है, लोग प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट है। लोगों ने क्या करा, प्राथमिक रूप से जो खेती है, एक खेती स्टार्ट की, खेती करने के लिए खेती करने की शुरुआत की। और एज वेल एज रेयरिंग ऑफ एनिमल की रेयरिंग भी करने लगी। आप हमारे घर में भी कुछ देखते इस पीरियड में भी हमारे और मॉडर्न युग भी देखते हैं दोस्तों। हम कुछ कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। इसलिए जैसे कि उस जमाने में भी मेसोलिथिक पीरियड में भी क्या करते थे लोग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, रेयरिंग ऑफ एनिमल करने लगे। कौन से एनिमल थे, कौन से बोन मिले हमें देखते हैं, डॉग, डियर, बोर एंड ऑस्ट्रिच। कौन से एनिमल थे, डॉग, डियर, बोर एंड ऑस्ट्रिच। इसके बोन मिले दोस्तों हमें। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, कहाँ मिले ये सब बोन मिले, मिथोलॉजिक पीरियड का जो भी है एविडेंस है, किस किस जगह फाउंड होता है, चलो देखते हैं। लालगंज इन गुजरात, आदमगढ़ इन एमपी, राजस्थान, यूपी एंड बिहार। क्या कहा, लालगंज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी एंड बिहार। एज वेल एज दिस पीरियड ऑफ पीपल यूज बो एंड आरो फॉर हंटिंग। क्या कहा मैंने, जो साइड साइड में पिक्चर देख रहे हैं आप, उसमें क्या देखा गया है, यूज ऑफ बो एंड आरो फॉर हंटिंग। यस और नो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस वन? दोस्तों हम देख रहे हैं स्टोन एज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स में तीसरा पार्ट चल रहा है हमारा दोस्तों दैट इज आल्सो कॉल्ड न्यूलिथिक पीरियड, दैट इज न्यू स्टोन एज, दैट इज कॉल्ड एज न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिक मींस न्यू स्टोन एज। इन दिस पीरियड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। क्या हुआ दोस्तों, जो प्रोग्रेस थी क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन की, धीरे धीरे करके बहुत अच्छे हो गए। और दूसरा पॉइंट क्या है, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉटरी। क्या कहा उसने, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स। पिछले मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, पॉलिशिंग वगैरह कुछ नहीं थी। पॉलिशिंग सीधे 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 स्टोन टूल के जो हथियार थे यूज कर रहे थे। लेकिन इस पीरियड में क्या हुआ, प्रोग्रेस कौन सी हुई, तो प्रोग्रेस ये हुई पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स एंड किसका, पॉटरी का मैन्युफैक्चर करने लगे। और एक बात है, ग्रास जो पिछले पिछले पीरियड में क्या लोग यूज करते थे रहने के लिए, ग्रास हट्स। लेकिन इस पीरियड में क्या होने लगा, क्या यूज करने लगे, मड ब्रिक हाउसेस। जो क्या यूज करने लगे, मड ब्रिक हाउसेस यूज करने लगे, जो आप साइड में देख सकते हैं पिक्चर में। इस पीरियड की अच्छी बात यह है कि इसमें व्हील वेयर यूज्ड टू मेक पॉटरी। व्हील मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, व्हील सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हील किस पीरियड में यूज किया गया है, हमें ध्यान में क्या रखना है, व्हील वेयर यूज्ड टू मेक पॉटरी इन विच पीरियड, दैट इज न्यूलिथिक पीरियड, दैट इज न्यू स्टोन एज। कॉफिन्स यूज्ड फॉर द बरियल ऑफ अ डेड, जो भी मरे हुए आदमी थे उसको किस में दफनाया जाता था, कॉफिन्स में दफनाया जाता था। किस में दफनाया जाता था, कॉफिन्स में दफनाया जाता था। इसमें हमने देखा है पिछले पीरियड में जो लोग खेती करने लगे, लेकिन इस पीरियड में क्या है, खेती करने की प्रिमिटिव स्टेज थी दोस्तों। लेकिन इस पीरियड में क्या है, कौन से क्रॉप लगाने लगे लोग, कौन से क्रॉप उगाने लगे, देखते हैं। व्हीट, बार्ली, राइस एंड मिलेट। कौन से, व्हीट, बार्ली, राइस एंड मिलेट। एज वेल एज कौन से एनिमल की शेप ग्रेयरिंग होने लगी, sheep, goats and cattle widely prevalent। कौन से तीन एनिमल थे दोस्तों, sheep, goats and cattle widely prevalent in this period। as well as this period is also हमने देखा है वेस्ट भी यूज होने लगा। as well as क्या लोग क्या करने लगे, पहनने के लिए कपड़े, और जो रेयरिंग एनिमल रेयरिंग करके जो मिलता था वूल, उसके क्या बनाते थे, कपड़े बनाते थे कि जो प्रोटेक्ट करता था फ्रॉम कोल्ड सीजन। क्या करता था, फ्रॉम कोल्ड सीजन। इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, व्हील किस में यूज होगा, व्हील किस पीरियड में, व्हील का उपयोग किस पीरियड में होने लगा, न्यूलिथिक पीरियड में होने लगा। कौन से पीरियड में, न्यूलिथिक पीरियड में। ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रख देना दोस्तों, क्योंकि कोई एग्जाम के लिए आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम।
दोस्तों हमारे साइड है, साइड न्यूरोलिथिक पीरियड के साइड देख रहे हैं हम। न्यूरोलिथिक पीरियड किस किस जगह में फाउंड होता है, तो देखते हैं किस किस जगह में फाउंड होता है। इन कश्मीर वैली। कहाँ फाउंड होता है? इन कश्मीर वैली, चिरांद इन बिहार। कहाँ? चिरांद इन बिहार। बेलान वैली इन एमपी, बेलान वैली इन एमपी। इन सदर्न इंडिया, वो तो हो गया नदर्न इंडिया का, लेकिन इन सदर्न इंडिया मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकैनल इन कर्नाटक। क्या है? कोडेकल इन कर्नाटक, पयमपल्ली इन तमिलनाडु, पयमपल्ली इन तमिलनाडु एंड उतनूर इन आंध्र प्रदेश। क्या है? पयमपल्ली इन तमिलनाडु है और उतनूर इन आंध्र प्रदेश। कहाँ फाउंड होता है? उतनूर इन आंध्र प्रदेश। इतना हम तीनों स्टेज देखे दोस्तों। पैरालिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड थर्ड वन इज न्यूलिथिक पीरियड। हमने बहुत जितना जरूरी है उतना ले लिया है दोस्तों, बहुत डिटेल में गए। इतना जितना एग्जाम के लिए चाहिए उतना तो ले लिया है दोस्तों। जो बनाया मैंने उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपके मन में आया तो कर देना, लेकिन फोर्स नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे। बिकॉज लाइक करने से क्या होता है कि आदमी की एनर्जी बढ़ती है, आदमी की जो एक्साइटमेंट है काम करने का वो बढ़ता है, इसलिए लाइक इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है वो लाइक करना है या डिसलाइक करना। कुछ डिसलाइक भी करना है तो बता दीजिए कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और लाइक करना है तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे कुछ सीखने और मैं उस एक्साइटमेंट के बारे में कुछ अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकूं। और सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना इसलिए कि सबसे मैं भी जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो भी ज्ञान बांटने वाला हिस्ट्री के बारे में, वो सबसे पहले आपको ही मिलेगा, आप सब्सक्राइब करते तो। इसलिए जरूर नहीं है आपको चाहे रील्स वगैरह बाकी कुछ देखने से अच्छा है कोई एजुकेशन फील्ड का कोई दो चार शब्द कुछ ज्ञान का सुन ले, कि ताकि आपके नॉलेज में आपके ज्ञान में भर बढ़ जाए। इसलिए सब्सक्राइब कर देना और शेयर इसलिए कर देना। शेयर क्या करने से क्या होता है कि जो आदमी ज्ञान बांटता है तो आदमी का ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता दोस्तों। इसलिए सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज बेनिफिशियल होगी तो हिस्ट्री के बारे में वो भी कुछ जानेंगे। इसलिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर देना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।